ناظرین السلام علیکم، خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ تیلگو دیشم تلنگانہ فورم کے 32 ارکان اسمبلی مستعفی، استعفے اسمبلی سیکرٹری کے حوالے۔ عام ہڑتال 16ویں دن میں داخل، شہر میں جگہ جگہ راستہ روکو احتجاج، کئی قائدین گرفتار۔ علیحدہ تلنگانہ کی تشکیل سے ہٹ کر اب کوئی بات نہیں ہوگی، KCR کا انتباہ۔ اور نئی انتخابی فہرست کے مسودے کی 31 اکتوبر کو اجرائی، اعتراضات داخل کرنے کی آخری تاریخ 30 نومبر مقرر۔ اب خبریں تفصیل سے۔ تیلگو دیشم تلنگانہ فورم سے تعلق رکھنے والے 32 ارکان اسمبلی نے چہارشنبے کی شام اسمبلی کے سیکرٹری سدارام کو اپنے استعفے حوالے کر دیے۔ بعد ازاں میڈیا سے بات کرتے ہوئے فورم کے کنوینر ای دیاکر راؤ نے کہا کہ تیلگو دیشم نے سیاسی بحران کے ذریعے علیحدہ تلنگانہ کا جو بیڑا اٹھایا اس پر عمل کرتے ہوئے 32 ارکان نے استعفے پیش کر دیے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اس اقدام میں تعاون کے لیے کانگریس کے تلنگانہ ارکان اسمبلی کا 5 بجے تک انتظار کیا گیا، تاہم کانگریسی ارکان نہیں آئے، لیکن ہم نے اپنے اعلان پر قائم رہتے ہوئے اپنے استعفے پیش کر دیے ہیں۔ واضح ہے کہ تیلگو دیشم کے کاما ریڈی سے تعلق رکھنے والے رکن اسمبلی گمپا گوردھن ریڈی اس موقع پر غیر حاضر تھے، جن کے بارے میں یہ قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں کہ وہ TRS میں شمولیت اختیار کرنے پر غور کر رہے ہیں۔ علیحدہ تلنگانہ کی تائید میں عام ہڑتال کے دوران چہارشنبے کو شہر کے مختلف مقامات پر راستہ روکو احتجاج منظم کیا گیا۔ ملازمین کی مشترکہ مجلس عمل کے صدر سوامی گوڑ کو پولیس کی مبینہ مار پیٹ کے خلاف بھی احتجاجیوں نے شدید برہمی کا اظہار کیا۔ عام ہڑتال 16ویں دن میں داخل ہو چکی ہے، لیکن حکومت کی جانب سے کام کاج کے جاری رہنے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ اطلاعات کے مطابق مختلف محکمہ جات میں 9000 فائلز تعطل کا شکار ہیں اور چیف منسٹر جہاں 5 دن سے سیکریٹریٹ نہیں آئے ہیں، وہاں وزراء بھی اپنے کام کاج سے دور ہیں۔ گزشتہ 2 دن سے سیما آندھرا ملازمین کو سیکریٹریٹ پہنچنے سے روکے جانے کے بعد سیما آندھرا کے زیادہ تر ملازمین بھی خدمات پر نظر نہیں آ رہے ہیں۔ اسی دوران علیحدہ تلنگانہ سیاسی JAC کی اپیل پر شہر کے مختلف اور اہم مقامات پر راستہ روکو احتجاج منظم کیے گئے۔ GPO ایبٹس پر BJP قائدین کے علاوہ TRS کارکنوں نے راستہ روکو احتجاج کیا۔ اس موقع پر سیاسی JAC کے صدر کودنڈا رام بھی موجود تھے۔ ریاستی BJP کے بنڈارو دتاتریہ نے کہا کہ حکومت تلنگانہ تحریک کو تشدد کا رنگ دینے کی کوشش کر رہی ہے اور پرامن احتجاجیوں پر پولیس کی جانب سے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں۔ انہوں نے تلنگانہ ملازمین JAC کے صدر سوامی گوڑ پر پولیس کارروائی کی شدید مذمت کرتے ہوئے خاطی پولیس عہدیداروں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا۔ اس موقع پر کودنڈا رام نے کہا کہ راستہ روکو احتجاج پرامن اور کامیاب رہا ہے۔ انہوں نے حصول تلنگانہ کے لیے کی جانے والی جدوجہد کو پرامن انداز میں جاری رکھنے کی درخواست کی۔ بعد ازاں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے قائدین اور کارکنوں کو حراست میں لے لیا۔ ہائی ٹیک سٹی کے پاس بھی TRS رکن اسمبلی ہریش راؤ کی قیادت میں راستہ روکو احتجاج کیا گیا۔ ہریش راؤ نے کہا کہ سیما آندھرا کے لیڈر L راجگوپال RTA دفتر میں جا کر تلنگانہ ملازمین کو دھمکیاں دیتے ہیں تو پولیس ان کا سرخ قالین استقبال کرتی ہے، لیکن جب تلنگانہ قائدین تلنگانہ ملازمین سے خیر سگالی ملاقات کے لیے جاتے ہیں تو ان پر لاٹھیاں برسائی جاتی ہیں۔ انہوں نے پولیس عہدیداروں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا۔ ہائی ٹیک سٹی کے پاس TRS کے دھرنے کی وجہ سے کافی دیر تک ٹریفک جام رہی، لیکن پولیس نے احتجاجیوں کو گرفتار کرتے ہوئے ٹریفک کو بحال کیا۔ ہریش راؤ کو بنجارہ ہلز پولیس نے کنچن باغ پولیس اسٹیشن منتقل کر دیا۔ ان کی گرفتاری کے خلاف احتجاجیوں نے چیف منسٹر کا پتلا نظر آتش کیا اور بسوں کے شیشے توڑ دیے۔ سیکریٹریٹ ملازمین کے احتجاج کے دوران چہارشنبے کو اس وقت کشیدگی پھیل گئی جب ملازمین سیکریٹریٹ کے احاطے میں راستہ روکو احتجاج کر رہے تھے۔ پولیس نے مداخلت کرتے ہوئے 3 ڈرائیورز کو حراست میں لیا۔
फिर मुलाजिमीन के एहतजाज करने पर 21 मुलाजिमीन को गिरफ्तार कर लिया गया। बरहम मुलाजिमीन ने सेक्रेटेरिएट में दाखिल होने के रास्ते पर धरना देते हुए गिरफ्तार किए गए मुलाजिमीन की रिहाई और एसीपी सेंट्रल जोन अकुन सबलवार की मअतली का मुतालबा किया। इस दौरान चीफ मिनिस्टर की आमद की इत्तला पर रैपिड एक्शन फोर्स और दीगर पुलिस अमले को तैनात कर दिया गया, ताहम चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट नहीं आए। करीब 3 बजे गिरफ्तार मुलाजिमीन की रिहाई अमल में आई। रिहाशुदा मुलाजिमीन की सेक्रेटेरिएट में आमद के बाद मुलाजिमीन ने उनका फूलों से इस्तकबाल करते हुए जबरदस्त मुजाहरा किया और जय तेलंगाना के नारे लगाए। बादशाह मुलाजिमीन रैली की शक्ल में सी ब्लॉक की तरफ बढ़ने लगे, ताहम पुलिस ने उनको रोक लिया। बाद में मुख्तलिफ तंजीमों के सदूर ने चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात करते हुए पुलिस कार्रवाई की शिकायत की। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि सेक्रेटेरिएट के 20% मुलाजिमीन पर किए जाने वाले मजालिम को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुलाजिमीन ने कहा कि अगर गिरफ्तार करदा 3 ड्राइवर्स को फौरी रिहा नहीं किया गया तो कल सेक्रेटेरिएट को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाएगा। वनस्थलीपुरम में भी तेलंगाना के हामियों ने रास्ता रोको एहतजाज किया। मुलाजिमीन की मुश्तरका मजलिस अमल के सदरनशीन स्वामी गौड़ को जद्दोकूब करने के खिलाफ अलहदा तेलंगाना के हामियों ने चारशंबे को सुबह हाईवे नंबर 9 पर एहतजाज किया। तेलंगाना के हामियों के एहतजाज के बायस ट्रैफिक जैम हो गई, जिसके बाद पुलिस ने तेलंगाना के हामियों को गिरफ्तार करके वनस्थलीपुरम पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। इसके अलावा जिले नलगुंडा के करीब कौमी शाहरा नंबर 9 पर सीमा आंध्रा से आने वाली बस को तेलंगाना के हामियों ने आग लगा दी। इस वाक़े में बस मुकम्मल तौर पर जलकर खाकिस्तर हो गई। अलहदा रियासत तेलंगाना के हामी कायदीन चंद्रशेखर राव, इनकलाबी शायर गदर और नागम जनार्दन रेड्डी ने केयर हॉस्पिटल पहुंचकर स्वामी गौड़ की अयादत की। इस मौके पर सदर टीआरएस के चंद्रशेखर राव ने हुकूमत से अकुन सबरवाल और स्टीफन रविंद्रा को फौरी मुअत्तल करने का मुतालबा किया। उन्होंने मुअत्तल न करने पर इंसानी हुकूक कमीशन से रुजू होने की धमकी दी। गदर ने हुकूमत से मुतालबा किया कि मज़कूरा दोनों पुलिस ओहदेदारों को फौरी मुअत्तल किया जाए या फिर वज़ीर दाखिला सबीता इंद्र रेड्डी खुद अपना इस्तीफा पेश कर दें। नागम जनार्दन रेड्डी ने वाकयात की जिम्मेदारी वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी को देते हुए कहा कि अगर तेलंगाना के अवाम पलट जाएंगे तो हालात मजीद अबतर हो जाएंगे और ये दिन बहुत जल्द आने वाला है। मुट्टूगुड़ा सिकंदराबाद के पास भी टीआरएस के रुकन असम्बली केटी रामाराव की क़ियादत में रास्ता रोको एहतजाज किया गया। इस मौके पर पुलिस और एहतजाजियों के दरमियान धक्कम पील भी देखने में आई और एहतजाजियों की जानिब से पुलिस की गाड़ी को भी नुकसान पहुंचाया गया। पुलिस को एहतजाजियों पर काबू पाने में काफी मुश्किलात पेश आईं। आरटीसी क्रॉस रोड के पास टीआरएस के साबिक रुकन असम्बली एम नरसिम्हा रेड्डी की क़ियादत में रास्ता रोको एहतजाज किया गया। इस मौके पर नरसिम्हा रेड्डी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर पुलिस की मदद से पुरअमन तहरीक को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। उस्मान यूनिवर्सिटी रोड पर भी 2 आरटीसी बसों को आग लगा दी गई। सिकंदराबाद के दीगर इलाकों वारसीगुड़ा, अलवाल, सीताफल मंडी और रानीगंज में भी रास्ता रोको एहतजाज मुनज़्ज़म किए गए और विजयवाड़ा के रुकन पार्लियामेंट राजगोपाल के खिलाफ नारे लगाए गए। उस्मानी यूनिवर्सिटी कैंपस में बहुजन तलबा की जानिब से शहीद भगत सिंह की तस्वीर के साथ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। तलबा ने अलहदा तेलंगाना तक अपना एहतजाज जारी रखने का अहद किया। उस्मानी यूनिवर्सिटी मुलाजिमीन जेएसी की जानिब से टीएनजीओस के सदर स्वामी गौड़ पर पुलिस के मुबैना हमले के खिलाफ एहतजाज किया गया। तारनाका में बीजेपी और टीआरएस कारकुनों ने रास्ता रोको एहतजाज किया। आरटीसी हॉस्पिटल के रूबरू तेलंगाना प्रजा फ्रंट के कारकुनों ने धरना देते हुए अलहदा तेलंगाना की हिमायत में नारे लगाए। अलहदा तेलंगाना की तश्कील से हटकर अब कोई बात नहीं होगी। तेलंगाना भवन में मीडिया से बात करते हुए सदर टीआरएस के सीआर ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश में इंजमाम से कबल तेलंगाना पसमानदा नहीं था, ताहम आंध्र प्रदेश में इंजमाम के बाद तेलंगाना पसमानदा बनता चला गया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के साथ हर महाज पर नाइंसाफ़ी की गई है। आबी और आबपाशी प्रोजेक्ट्स में भी तेलंगाना को बुरी तरह से नज़रअंदाज किया गया। केसीआर ने कहा कि हैदराबाद के बगैर अलहदा तेलंगाना का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि आंध्राई कायदीन ने अपने अहदों का इस्तेमाल करते हुए हैदराबाद में अराजियात पर कब्जा किया है। केसीआर ने कहा कि हैदराबाद की तरक्की में सीमा आंध्रा कायदीन का कोई रोल नहीं रहा है। उन्होंने तेलंगाना के कायदीन को घास खाने वालों से ताबीर किया। केसीआर ने कहा कि सेक्रेटेरिएट में 80% सीमा आंध्रा से ताल्लुक़ रखने वाले मुलाजमीन हैं। उन्होंने कहा कि आंध्राई कायदीन के लिए तेलंगाना सिर्फ एक कागज़ पर लिखा जाने वाला हर्फ बनकर रह गया है और उसके साथ इंसाफ कभी नहीं किया गया।
केसीआर ने कहा कि हुकूमत जुल्म जबरदस्ती के जरिए हड़ताल और तहरीक को खत्म करने की कोशिश कर रही है। तेलंगाना प्रजा फ्रंट के सरबराह गदर ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी तलबा जेएसी की जानिब से निकाली गई बस यात्रा को झंडी दिखाई। इस मौके पर गदर ने तेलंगाना कायदीन के इस्तीफों से मुताल्लिक पहले आप के इख्तियार किए गए तर्ज अमल को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने स्वामी गौड़ के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के जिम्मेदार अहदेदारों को मुअत्तल करने का मुतालबा किया। गदर ने कहा कि जमहूरी एहतजाज को पुलिस जुल्म के जरिए दबाने की कोशिश की जा रही है। इस मौके पर मुजाहिद आज़ादी कोंडा लक्ष्मण बाबूजी भी मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि तेलंगाना रियासत की तश्कील से अवाम को फायदा होगा और मजहब परस्त जमातें नुकसान से दो चार होंगी। पार्टी के सीनियर कायद वेंकैया नायडू ने तेलंगाना के ताल्लुक से सदर मजलिस की जानिब से दिए गए बयान की शदीद मजम्मत की। उन्होंने कहा कि मजलिस कांग्रेस की हलीफ जमात है, इसलिए वो कांग्रेस की जुबान बोल रही है। The Delhi police, instead of pursuing the case and trying to trace the source of the money, identify the persons who are the beneficiaries and charge sheeting them, is proceeding against people who acted as whistleblowers. Sudhindra Kulkarni is a whistleblower. It is shocking and कांग्रेस के रुकन कौंसल रंगारेड्डी ने टीआरएस सरबराह के चंद्रशेखर राव की तरफ इशारा करते हुए कहा कि सड़कों पर बयानबाजियां करने वाले अवामी कायद नहीं कहलाते। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने केसीआर पर यह लगाया कि उन्होंने तेलंगाना के नाम पर लाशों की सियासत की है और मुलाजमीन को बली का बकरा बनाया है। ఇప్పటికైనా ఆలోచించి దసరా పండుగకు ముందు ప్రజలకు కావాల్సిన సౌకర్యాలు చాలా వెనుకబడిపోయినాయి కాబట్టి रुकन असम्बली चारमीनार सैयद अहमद पाशा खादरी ने जेएचएमसी के जोनल कमिश्नर और दीगर अहदेदारों के साथ मक्का मस्जिद के ज़ेर इल्तिवा कामों का जायजा लिया। बाद मीडिया से बात करते हुए अहमद पाशा खादरी ने बताया कि रमज़ान में कई कामों को मुकम्मल करने का निशाना रखा गया था, तहां वक्त की कमी की वजह से उसे मुकम्मल नहीं किया जा सका। अहमद पाशा खादरी ने बताया कि तहारत खाने में पानी की पाइपलाइन को तब्दील करने की हिदायत दी गई है और पानी के सम्प का काम भी जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि बलदी अहदेदारों ने ज़ेर इल्तिवा कामों को 1 हफ्ते में मुकम्मल करने का तयक़ुन दिया है। मुसल्लियों को किसी किस्म की तकलीफ ना होने पाए, यही हमारा मकसद है और इसी के तहत नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस की हिदायत पर वक्तन फ़वक्तन मकामी कामों का जायज़ा लिया जाता है और आइंदा भी लेते रहेंगे काम, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सहूलत हो सके। और उसके अलावा भी जो टूरिस्ट आते हैं देखने करने के लिए, उनको भी इस सिलसिले में कोई तकलीफ ना होने पाए, वो भी इंतजामात इसमें शामिल हैं। ज़ीक़दा का चांद नज़र नहीं आया और जुमेरात को 30 शव्वाल होगी। रुयत हलाल कमेटी सदर मजलिस उलमाए दक्कन का इजलास हुसैनी बिल्डिंग मौज़न जाही मार्केट में मुनक़िद हुआ। कमेटी ने बताया कि हैदराबाद में मतला अबरालूद था, किसी और मुकाम से भी चांद नज़र आने की कोई इत्तला नहीं मिली है। रुकन असम्बली बहादुरपुरा मौजम खाने किशन बाग डिवीजन ने 50 लाख रुपए की लागत से तामीर की गई सीसी रोड का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मौजम खान ने बताया कि किशन बाग डिवीजन के चिराग अली नगर, कोंडा रेड्डी नगर, सत्यानगर, रहमत नगर और महमूद नगर में सीसी रोड की तामीर मुकम्मल हो चुकी है। उन्होंने बताया कि सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर बहादुरपुरे में बरखी, आबरसानी और सीवरेज के कामों को भी जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। साहब हमेशा यही कहते हैं और मरहूम सदर आली जनाब अलहाज सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी साहब हमेशा कहते थे, आप आवाम के दरमियान में रहिए, उनकी तकलीफ को समझिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पॉलिसी यही है और हमेशा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यही चाहिए कि हमारे बस्तियों में जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लमों को दूर करे। बुनियादी जो मसाइल है हमारे लोगों के, उस बुनियादी मसाइलों को हम दूर करें इंशाअल्लाह ताला। इसके साथ ही और करोड़ों रुपए के कामों की इनॉग्रेशन आगे होंगे। शुक्रिया। तेलुगु देशम के रुकन असम्बली डी उमा ने जगन मोहन रेड्डी पर पुरसा यात्रा के नाम पर अवाम को गुमराह करने का इल्जाम आयद किया है। मीडिया से बात करते हुए डी उमा ने कहा कि जगन मोहन रेड्डी के दिल्ली दौरे के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई सुस्त पड़ चुकी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और जगन में मुफाहमत हो चुकी है। तेलुगु देशम लीडर ने कहा कि जगन मोहन रेड्डी को भी गाली जनार्दन के साथ जेल में होना चाहिए था।
रियासती इलेक्शन ऑफिस ने 2012 की इंतखाबी फहरिस्त के लिए इशाअती मराहिल का ऐलान कर दिया है। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर भंवर लाल ने बताया कि 31 अक्टूबर पीर के दिन मसवदा फहरिस्त जारी की जाएगी, जबकि 30 नवंबर तक एतराज़ात व अदायजात दाखिल किए जा सकते हैं। 5 जनवरी 2012 को राय दहिंदगान की क़तई फहरिस्त शाये कर दी जाएगी। दक्कन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की जानिब से फ़नी महारत और काबिलियत में बेहतरी के सिलसिले में स्टेप 2011 के उन्वान से सेमिनार मुनक्किद किया गया। 2 रोज़ा सेमिनार से खिताब करते हुए रियासती फ़नी शोबे तालीम के सेक्रेटरी वी रामाराव ने दक्कन इंजीनियरिंग कॉलेज के इंतज़ामिया को बेहतर तालीमी मयार के बरकरार रखने और मुतासिरकुन नताइज पर मुबारकबाद दी। कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर M.A. मलिक ने इस मौके पर कहा कि इस वर्कशॉप में खुसूसी तौर पर गैर तदरीसी अमले को तरजीह दी गई है। उन्होंने बताया कि साबिक़ की तरह इस वर्कशॉप को हौसला अफजा रद्दअमल मिला है। उन्होंने बताया कि इस वर्कशॉप से शोबे से वाबस्ता माहिरीन खिताब करेंगे और इससे तलबा को काफ़ी इस्तिफादा होगा। वर्कशॉप के इफ्तिताही सेशन से दक्कन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के ट्रस्टी सैयद अकबर निज़ामुद्दीन ने खिताब किया और कॉलेज इंतज़ामिया को मुबारकबाद दी। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हज हाउस में दारुस्सलाम बैंक और रोजनामा एतमाद के स्टॉल्स का इफ्तिताह अंजाम दिया। आज़मीन हज की सहूलतों की खातिर दारुस्सलाम बैंक के स्टॉल का हज हाउस में क़याम अमल में लाया गया है। इस स्टॉल से आज़मीन हज को ज़र मुबादला की सहूलत हासिल रहेगी। इस मौके पर दारुस्सलाम बैंक के सदरनशीन सैयद अकबर निज़ामुद्दीन और सदरनशीन हज कमेटी खलील अहमद भी मौजूद थे। शहर में चारशंबे की शाम हुई मूसलाधार बारिश से गुज़िश्ता 2 दिनों से गर्मी का सामना कर रहे अवाम को राहत महसूस हुई। शहर के कई इलाकों में शदीद बारिश की वजह से कई मकामात पर पानी जमा हो गया और मसरूफ़ औक़ात में ट्रैफिक भी जाम देखी गई। महकमे मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान बाज़ मकामात पर हल्की या तेज़ बारिश की पेशकशी की है। चारशंबे की शाम 5:30 बजे तक 2.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 डिग्री और कम से कम 24 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। जामे मस्जिद क़ुबूर वाक़या अमीरपेट की इंतज़ामी कमेटी की लापरवाही की वजह से मस्जिद से मुतसिल क़ब्रस्तान का बुरा हाल है। मुक़ामी अफराद ने शिकायत करते हुए बताया कि इस कदीम क़ब्रस्तान की सही तरीके से देखभाल नहीं की जा रही है, जिसकी वजह से क़ुबूर की बाक़ियात बाहर पड़ी हुई हैं। रामचंद्रपुरम पुलिस ने 7 अफराद को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 14 तोले के तिलाई जेवरात, 10 तोले चांदी और एक DVD प्लेयर बरामद कर लिया। पुलिस ने मीडिया को बताया कि टोली SN कॉलोनी के इलाके में मुश्तबा हालत में घूम रही थी। पुलिस ने उन्हें शुबे की बुनियाद पर अपनी तहवील में लेकर तफ्तीश की तो इन लोगों ने अपने जुर्म का इतराफ़ कर लिया और बताया कि उन्होंने 3 महीने पहले बोराबंडी में एक मकान से मज़कूरा अशिया का सरखा किया था। पुलिस एक केस दर्ज करके गिरफ्तारशुदा अफराद को अदालती तहवील में दे दिया है। త్వరలో రివార్డులు పంపడానికై ఉన్నతాధికారులకు నివేదిక అందజేయగలను. 1-2 మంత్స్ నుంచి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఇదే మొట్టమొదటిసారిగా వాళ్ళు చేసింది. ఇంతవరకు ఇంకేం దొంగతనాలు చేసినట్టుగా మనకు విచారణలో తేలలేదు. ఇద్దరు మటుకు బీదర్ వాళ్ళు, ఒక అతను బీహార్ అయితే అతను గత ఒక 8-9 ఇయర్స్ నుంచి వచ్చి ఇక్కడ మన బాంబే కల్లో సెటిల్ అయిన వాళ్ళ ఫ్యామిలీతో సహా। हिमायतनगर पुलिस ने एक आदि सारिक को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से 5 लाख रुपए मालियती अशिया बरामद कर ली। सर्कल इंस्पेक्टर P. मधुकर स्वामी ने बताया कि ओकास कॉम्प्लेक्स मेहदीपट्टनम में पुलिस ने एक शख्स SM कासिम की मुश्तबा हरकतों पर शुबा करते हुए उसे अपनी तहवील में लेकर तफ्तीश की तो उसने अपने जुर्म का इतराफ़ कर लिया और बताया कि एक आदि सारिक है जिसने विजयनगर कॉलोनी के इलाके में 1 महीने पहले 25 तोले के तिलाई जेवरात का सरखा किया था। पुलिस एक केस दर्ज करके उसे अदालती तहवील में दे दिया है। छतरीनाका पुलिस स्टेशन के हदूद में मुकामी अवाम ने कमसीन लड़की के अगवा करने के शुबे में खातून को पुलिस के हवाले कर दिया। मुकामी अवाम के मुताबिक निमरा कॉलोनी में 3 साल लड़की हाजरा बेगम घर के सामने खेल रही थी कि परवीन सुल्ताना नामी खातून मुश्तबा हालत में वहां घूमते हुए हाजरा का अगवा करने की कोशिश की, जबकि परवीन सुल्ताना का कहना है कि वह हाजरा को चॉकलेट दिला रही थी कि गलत फहमी की वजह से उसे मुकामी अफराद ने पकड़ लिया। छतरीनाका पुलिस वाक़े की तहकीकात कर रही है। फतेह शाह नगर वाक़े भवानी नगर के रहने वाले 66 साला अहमद बिन नसर 8 सितंबर से लापता बताए गए हैं। उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है और वो घर में किसी को बताए बगैर चले गए। किसी को नजर आ जाए तो ख्वाहिश की गई है कि भवानी नगर पुलिस को इत्तला दी जाए। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं।
तेलुगु देशम तेलंगाना फोरम के 32 अरकान असम्बली मुस्तफी, इस्तीफे असम्बली सेक्रेटरी के हवाले। आम हड़ताल 16वें दिन में दाखिल, शहर में जगह जगह रास्ता रोको एहतजाज, कई कायदीन गिरफ्तार। अलहदा तेलंगाना की तश्कील से हटकर अब कोई बात नहीं होगी, केसीआर का इंतबाह। और नई इंतखाबी फहरिस्त के मसवदे की 31 अक्टूबर को इजराई, एतराजात दाखिल करने की आखिरी तारीख 30 नवंबर मुकर्रर। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।